ओके, स्टार्ट करो। या रीड करो, एनीवन, कोई भी। Percutaneous coronary intervention, PCI. Percutaneous is equal to denoting the passage of substances through unbroken skin, as in absorption by injection, also passage through the skin by needle puncture, including introduction of wires and catheters by Seldinger technique. Synonym transcutaneous, transdermic. Arterial plaque can be removed via one or more of the following procedure: percutaneous coronary angioplasty, PTCA, or angioplasty, atherectomy, stent. 5 major coronary vessels. These are access points and they are keywords. Artery, HIPIX abbreviation and branch and direction. Right coronary, RC, up to 2 posterior descending posterolateral. Left anterior descending, LD or LAD, up to 2 diagonal. Left circumflex, LC, up to 2 marginal. Left main, LM, no branches. Ramus intermedius, RI, no branches. Hierarchy. First, stent are the most complex procedures. 2, atherectomies are atherectomies are next complex. Angioplasties are the least complex. There are 7 columns. First, 92943 is equal to revascular of chronic total occlusion. Second, 92941 revascular acute, that is during AMI in bracket heart attack. 3, 92933 stent atherectomy and angioplasty. 4, 92924 atherectomy or angioplasty. 5, 92937 revascular through bypass graft. 6, 92928 stents angioplasty. 7, 92920 angioplasty. How to code? First, identify main artery or vessels. Determine what is being done: angioplasty, atherectomy, stent, or revascularization. Select the appropriate code based upon the hierarchy. Select the appropriate add-on code for branches and other procedures. Packaged bundle in PCI codes: 1, accessing the lesion. 2, selective catheterization. 3, transversing the lesion. 4, radiological supervision and interpretation. 5, closure of arteriotomy. 6, procedures: atherectomy, angioplasty, and stenting. 7, diagnostic coronary angiography may be reported separately under specific circumstances. ओके, तो ये सारी गाइडलाइन हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में जो परक्यूटेनियस है उसका मतलब ही क्या होता है? थ्रू द अनब्रोकन स्किन, है ना। अनब्रोकन मतलब कि क्या होता है कि स्किन के अंदर थोड़ा सा हल्का सा छेद किया जाता है, इंसिजन होता है, माइनर इंसिजन, और उसके थ्रू कुछ भी डाला जा इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो एकदम अनब्रोकन का मतलब ऐसा भी नहीं है कि स्किन इंटेक्ट रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्किन में मतलब पंक्चरिंग तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि डिनोटिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंस थ्रू अनब्रोकन स्किन एज इन एब्सॉर्प्शन बाय इनक्शन, also passage through the skin by needle puncture, including introduction of wire catheter by Seldinger technique, transcutaneous, transdermic, ये भी सारे उसके ही कीवर्ड है। arterial plaque can be removed via one or more of the फॉलोइंग प्रोसीजर। ठीक है, तो प्लैक क्या होता है? प्लैक, PLAQUE का मतलब क्या है? फैटी डिपॉजिट,
है ना, जो आर्टरी होती है उसके अंदर जो जम जाता है ना, जैसे पाइपलाइन होती है तो पुरानी होती है तो अंदर काई जम जाती है ना, तो वैसे आर्टरी में भी ये सब जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिडिफाई हो गए, मतलब कि फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो प्लेक होता है, फैटी डिपॉजिट बोला जाता है उसको। ठीक है, तो उसके तीन प्रोसीजर है, कौन कौन से है? परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, दैट इज पीटीसीएफ इसका एब्रीविएशन है, और या तो सिंपल लैंग्वेज में एंजियोप्लास्टी, एथेरेक्टोमी। ठीक है, तो यहाँ पे एथेरो का मतलब क्या होगा? एथेरो, एथेरो मीन्स प्लेक। ठीक है, PLAQE मतलब फैटी डिपॉजिट। और एक्टोमी का मतलब क्या होगा? सर्जिकल रिमूवल, मतलब कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्लेक। ठीक है, तो प्लेक का रिमूवल जो होगा वो एथेरेक्टोमी होगा। और स्टेंट, ठीक है, तो स्टेंट में क्या होता है? जैसे आपको पता होगा कि स्टेंट में एक ऐसा छोटा सा ट्यूब टाइप का होगा जो अंदर जाएगा और बाद में एक्सपांड होगा, तो फिर क्या होगा? वहाँ का जो अक्लूजन होगा ना, ये जो है वो स्टेंट है। ठीक है, अंदर उसको आर्टरी में या वेसल में भेजा जाएगा और फिर थोड़ा एक्सपांड किया जाएगा, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो पार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेंटिंग कैसे किया जाता है वो सब दिया है। ठीक है, तो वो स्टेंट का मतलब कि प्रोसीजर है। और मॉडिफायर के साथ में मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि जो ये मॉडिफायर में कितनी ब्रांच होती है। ठीक है, तो राइट कॉरोनरी में दो ब्रांच होती है, कौन कौन सी होती है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग एक हो गई और पोस्टेरोलेटरल दूसरी। ठीक है, तो ये दो ब्रांच जो है वो राइट कॉरोनरी में मिलती है। फिर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग में दो ब्रांच कौन सी होगी? बट डायगोनल की, डायगोनल ब्रांच की होगी। ठीक है, उसके बाद में लेफ्ट सरकमफ्लेक्स टू मार्जिनल, है ना, दो ब्रांच होगी, दोनों की दोनों मार्जिनल होगी। लेफ्ट मेन और रेमस इंटरमीडियस, जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं होगा। ठीक है, अब हायरार्की है, मतलब कि ये जो तीन प्रोसीजर है, स्टेंटिंग, एथरेक्टोमी और एंजियोप्लास्टी, तो उसमें रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो अगर स्टेंटिंग है तो उसका एकदम हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मतलब कि स्टेंटिंग वाली जो CPT होगी वो पहले करेंगे, उसके बाद में एथरेक्टोमी का नंबर आएगा और तीसरे नंबर पे एंजियोप्लास्टी रहेगा। ठीक है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी जो होती है वो लिस्ट कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, RVU इसकी लोएस्ट होगी एंजियोप्लास्टी की, लेकिन स्टेंट वाली जो CPT होगी उसकी RVU ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से हमें सबसे पहले स्टेंट का करना है, उसके बाद में एथरेक्टोमी और थर्ड नंबर पे एंजियोप्लास्टी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये जो टेबल है ना, इसमें क्या दिया है कि 92943 इक्वल टू 92941 इक्वल टू 92933, है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू ये जो है तीन चीजें, वो मतलब कि वेटेज एक जैसा ही है। ठीक है, तो तीनों का वेटेज एक ही है, और ये जो है 92923 इसका वेटेज 92924 से ज्यादा है, मतलब कि 92924 की जो RVU है उससे ज्यादा RVU किसकी है? 92933 की है ना। और 92924 है उसकी RVU है वो 92937 की RVU से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन 92937 और 92928 दोनों इक्वल है। ठीक है, फिर 92928 है वो 92920 से ऊपर है, मतलब कि इसकी RVU ज्यादा है। तो अब इसका टेबल का इंटरप्रिटेशन क्या है कि हमें इसको इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि जब भी होगा ना आंसर में, तो कैसे करना है यूज, उसका कैसे करना है वो देखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 92924 ग्रेटर देन, इस तरह से मिल रहा है ना टेबल के अंदर, इस तरह से है 92937। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस तरह से लिखूंगा 92937 कॉमा 92924, तो ये सही होगा या गलत होगा? गलत रॉन्ग। रॉन्ग है ना, तो बस इस तरह से आपको देखना है। मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ 92920 और 92928, तो ये क्या होगा? करेक्ट। 92920 कॉमा 92928 रॉन्ग होगा। रॉन्ग रॉन्ग। होगा, है ना, क्योंकि 92928 इज ग्रेटर देन ग्रेटर। 92920 इसलिए। 92। ठीक है, और अगर ऐसा लिखता हूँ कि 92924 और 92943, तो
सही है ना सर, करेक्ट है। इक्वल, हाँ करेक्ट है। देखो 92924 यहाँ पे है ना, और 92943 यहाँ पे है, ठीक है। तो 92943 और ये सब तो ज्यादा ही है वैल्यू, यहाँ से ऐसे कम होता जा रहा है, तो ये कम वाला पहले तो आएगा ही नहीं ना, तो ये गलत है ना। इसकी आरव्यू कम ही है तो ये गलत हो गया है ना, ये कम है और ये हाईएस्ट है, ठीक है, तो ये भी गलत ही है, ठीक है। समझ में आ रहा यस सर, यस सर। है ना। तो ये ध्यान में रखना है, बाकी ये आपको बस इतना ही है। लेकिन ये बुक में आपको कहाँ मिलेगा वो आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ हाईलाइट करने के लिए 92943। और ठीक है, यहाँ पे ये जो, एक मिनट कोड नंबर देख के बताता हूँ ताकि जल्दी से पहुँच पाओगे। 92998 वाला जाइए आप, और इसके नीचे ये जो लंबी लंबी पैराग्राफ है ना, उसके अंदर यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो उसको आप अपनी बुक में हाईलाइट कर दीजिए। ये 2-3 जगह पे मिलता है, देखो ये वाला एक हो गया है ना, और एक वाला ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 जगह पे लाइन कर दीजिए आप। कहाँ पे मिलता है? 92998 वाला जो है ना, उसके बाद में मिलेगा, 92998 के बाद में जो है उसमें मिलेगा आपको। बता देना सबका हो जाए ना, तो हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए आपको पहले बुक में हाईलाइट कर लीजिए। हो गया सर। या सारे लोगों का हो गया? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी ब्रांच का जो है ना, वो उसमें भी हाईलाइट कर दीजिए। तो यहाँ पे दिया है ना, कोरोनरी आर्टरी ब्रांचेस अप टू 2 कोरोनरी लेफ्ट एंटीरियर, है ना। तो कौन सी है? डायगोनल है लेफ्ट एंटीरियर की, लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स की मार्जिनल है, और राइट कोरोनरी की ये दो है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग और पोस्टेरोलैटरल, ठीक है। और लेफ्ट मेन और रेमस की कोई ब्रांचेस नहीं है, तो ये भी आपको अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना है। और याद भी रखना है, ठीक है। अगर मतलब याद तो रखना ही है, लेकिन बाय चांस अगर आपको जरूरत पड़ी, नहीं याद आ रहा है, तो कहाँ पे बुक में मिल रहा है वो तो पता होना चाहिए ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, कर लिया सबने हाईलाइट, यस अंडरलाइन? सर। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेथड दिया है ना, इसमें क्या दिया है, हाउ टू कोड, मतलब कि पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आर्टरी का क्या हो रहा है ना। तो आर्टरी कौन सी है, क्या हो रहा है, वो देखेंगे। उसके बाद में सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कोड बेस्ड अपॉन हायरार्की, मतलब कि स्टेंटिंग है तो पहले लगाना है, एथरेक्टोमी है तो बाद में लगाना है, और एंजियोप्लास्टी लास्ट में। एड ऑन कोड कब यूज करना है ना। तो ये जो एड ऑन कोड वाली जो बात है ना, तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नाम आएगा ना, कैसा, पोस्टीरियर डिसेंडिंग, पोस्टेरोलैटरल, डायगोनल, मार्जिनल, इस तरह का कोई भी वर्ड आया ना, तो हमें याद आनी चाहिए किसकी, एड ऑन कोड की याद आनी चाहिए, ठीक है। जब भी एड ऑन कोड यूज करना होगा ना, तो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर क्या मिलना चाहिए, ब्रांच में से कुछ भी मिलना चाहिए, मतलब कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग हो सकता है, पोस्टेरोलैटरल का हो सकता है, डायगोनल हो सकता है, या मार्जिनल हो सकता है, ठीक है। तो बताओ क्या बताया मैंने, क्या समझा आपने, क्या रिपीट करो। अगर एड ऑन कोड लगाना है तो ब्रांचेस ढूंढना है हम लोग हाँ, ब्रांचेस ब्रांचेस जब होना मिलेगी चाहिए, ना क्वेश्चन के जैसे कि डिस्क्रिप्शन में, हाँ तभी हम एड ऑन का यूज एड करने कोड का लगाएंगे। सोचेंगे, है ना।
अदरवाइज ब्रांड एड ऑन का यूज करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया कि ब्रांचेस का नाम जब भी हमारे पास क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा तो हमारी लाइट होनी चाहिए कि एड ऑन का यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम थोड़े से कोड रट लेंगे। ठीक है, तो 92928 है ना, वो हमें याद रखना ही रखना है। ठीक है, बाकी मतलब वैसे तो सारे ही रह जाते हैं, लेकिन ये दो तीन है वो तो रखने हैं। 92928 होगा ना, उसमें फिर क्या है, स्टेंटिंग है और एनजीओ दोनों ही है। ठीक है, एनजीओ जो है वो व्हेन परफॉर्म्ड ऐसा करके मिल रहा है, लेकिन ये स्टेंटिंग तो होगा ही होगा। ठीक है, स्टेंटिंग और एनजीओ। ठीक है, फिर 92933, तो इसमें तीन चीज होगी। ठीक है, स्टेंटिंग, एथरेक्टोमी और एंजियोप्लास्टी। ठीक है, स्टेंट प्लस एथरेक्टोमी प्लस एंजियोप्लास्टी। ठीक है, तीनों चीज है। और 92941 है ना, तो 92941 ये भी याद रखना है क्या होता है, रीवास्कुलराइजेशन और एएमआई है ना, एक्यूट एमआई। इतना याद रखना है ना, रीवास्कुलराइजेशन, एक्यूट एमआई। ठीक है, हार्ट। और 92943 है, वो क्या है, वो भी रीवास्कुलराइजेशन है, लेकिन क्रॉनिक अक्लूजन का है। ठीक है, तो 92943 क्रॉनिक का है और 92941 एक्यूट अक्लूजन समझ सकते हो। और एक तीसरा जो है 92934 वो भी रीवास्कुलराइजेशन है, लेकिन ये किसका है, बाईपास ग्राफ्ट का है। ठीक है, तो रीवास्कुलराइजेशन के लिए हमारे पास तीन सीपीटी है। 43 वाली जो है वो क्रॉनिक अक्लूजन की है, 41 है वो एक्यूट अक्लूजन की है, और 937 जो है वो बाईपास ग्राफ्ट के रिवास्कुलराइजेशन की है। ठीक है, फिर 92933 तीनों चीज होगी, कौन कौन सी, स्टेंटिंग, एथरेक्टोमी और एंजियोप्लास्टी। फिर 92924 है, वो क्या है, एथरेक्टोमी और एंजियो है। ठीक है, एथरेक्टोमी और एंजियोप्लास्टी। और 92920 है, वो देख सकते हो आपके सिर्फ और सिर्फ एंजियोप्लास्टी एनजीओ। ही है ना, सिर्फ एंजियोप्लास्टी है, तो फिर 92920 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कोड देखेंगे। ठीक है, तो कोड देखेंगे और कुछ समझेंगे उसमें से। ओके, तो 92920 क्या है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, मतलब के पीटीसीए है ना, सिंगल मेजर कोरोनरी आर्टरी और ब्रांच। ठीक है, तो ये एक ब्रांच के लिए होगा, सिंगल कोरोनरी मेजर आर्टरी या तो एक ब्रांच। ठीक है, अब ये जो है वो क्या है, एड ऑन कोड है ना, 92921 एड ऑन कोड है। तो एड ऑन मैंने आपको ऑलरेडी कब बताया है, कब ध्यान में रखना है, कब यूज होगा ये, क्या क्या ब्रांचेस मिलेगा। ब्रांचेस ब्रांचेस दिखा। हाँ, ब्रांचेस का होगा ना, मतलब कि पोस्टेरोलेटरल, पोस्टीरियर डिसेंडिंग, या फिर मार्जिनल या डायगोनल, तब यूज होगा। तो इसमें क्या मिल रहा है, ईच एडिशनल ब्रांच ऑफ ए मेजर कोरोनरी आर्टरी है ना, ईच एडिशनल मतलब कि जितनी होगी उतने बार होगा। ठीक है, उसके बाद में 92924 है, तो इसमें क्या मिल रहा है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एथरेक्टोमी, यहाँ पे एथरेक्टोमी है विथ कोरोनरी एंजियोप्लास्टी व्हेन परफॉर्म्ड। ठीक है, तो एथरेक्टोमी तो होना ही चाहिए, और एंजियोप्लास्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, सिंगल मेजर कोरोनरी आर्टरी और ब्रांच। और इसका जो होगा एड ऑन क्या होगा, 92925 होगा। तो यहाँ पे भी यही है, कब यूज करेंगे, पोस्टेरोलैटरल, पोस्टीरियर डिसेंडिंग, मार्जिनल, डायगोनल, इस तरह का आएगा ना, तब ये इसका यूज करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और इसका यूज करना है तो फिर प्राइमरी कौन सी होगी, इसमें से कोई होगी। ठीक है, लाइकवाइज इसका यूज करना है, ये वाली एड ऑन का, तो इसकी भी प्राइमरी इसमें से कोई भी एक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में आता है 92928। तो 92928 में क्या है, परक्यूटेनियस ट्रांस कैथेटर प्लेसमेंट ऑफ इंट्राकोरोनरी स्टेंट इनटू ब्रैकेट एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेंट इनटू ब्रैकेट एस मतलब क्या हुआ, स्टेंट चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, या चार हो, कितने भी हो, 10 हो, तो भी रिपोर्ट करना है सीपीटी एक ही बार, 92928। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो बार है तो 92928 टाइम्स टू, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटू ब्रैकेट एस है, स्टेंट के इंटू ब्रैकेट एस है, मतलब कि दो स्टेंट होगा, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 92928 टाइम्स टू करेंगे हम, है ना, ऐसा गलत हो जाएगा वो। ठीक है,
तो ये स्टेंट है और विथ कोरोनरी एंजियोप्लास्टी व्हेन परफॉर्म्ड, मतलब कि एंजियोप्लास्टी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, सिंगल मेजर कोरोनरी आर्टरी और ब्रांच। और ये है एड ऑन है। ठीक है, तो एड ऑन का जो मैंने बताया ना, पोस्टेरोलैटरल, पोस्टीरियर डिसेंडिंग, मार्जिनल और डायगोनल जब होगा तब यूज होगा, और प्राइमरी इसमें से होगी इसकी। ठीक है, फिर 92933, तो यहाँ पे क्या है, percutaneous transluminal coronary atherectomy with intracoronary stent with coronary angioplasty when performed। तो यहाँ पे दो चीज होनी चाहिए, एथरेक्टोमी और स्टेंटिंग। और एंजियोप्लास्टी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो 92933 में मैंने ऑलरेडी बताया ना कि तीन चीज है। ठीक है, तो तीनों आप देख सकते हो कि मैचिंग भी है, मतलब कि सीपीटी के डिस्क्रिप्शन में भी सारा मैचिंग हो रहा है। ठीक है, तो हमारे माइंड में भी हमें रख लेना है सिंपल डिस्क्रिप्शन। और इसका भी एड ऑन सीपीटी है, तो ये एड ऑन का भी वही है जो ब्रांच वाली होगी ना, तब हम यूज करेंगे, ब्रांच का डिस्क्रिप्शन मिलेगा क्वेश्चन में, तब हम इसको यूज करने का सोचेंगे। प्राइमरी कौन सी होगी वो यहाँ से होगी। ठीक है, प्राइमरी का देखना ही देखना है कि कौन सी प्राइमरी मैचिंग सही वाली है कि नहीं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो Yes, नहीं sir. है यहाँ तक अभी जो भी हमने देखा उसमें से? कोई डाउट है? हेलो? नो सर। ओके, ठीक है, तो फिर आगे वाला देखते हैं। 92937 है जो कि हमारा रीवास्कुलराइजेशन का है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रीवास्कुलराइजेशन ऑफ बाईपास ग्राफ्ट। ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्राकोरोनरी स्टेंट, एथरेक्टोमी एंड एंजियोप्लास्टी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज है, स्टेंटिंग है, एथरेक्टोमी है, एंजियोप्लास्टी, इंक्लूडिंग डिस्टल प्रोटेक्शन व्हेन परफॉर्म्ड, सिंगल वेसल, एक वेसल का ये है। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या हो गया, एक वेसल का है ना, तो मतलब कि 92937 जो है वो कभी भी ×2 ×3 इस तरह से हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 92937 ×2 3 एटसेट्रा इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये एकदम दिमाग में रख लेना है। ठीक है, 92938 है वो ईच एडिशनल ब्रांच, माने जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो यहाँ पे भी है, और इसका प्राइमरी एकमात्र है 92937। ठीक है, फिर 92941 क्या होता है, रीवास्कुलराइजेशन ऑफ एक्यूट अक्लूजन, एक्यूट एमआई है ना, एक्यूट टोटल अक्लूजन ड्यूरिंग एक्यूट एमआई, कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेंट, एथरेक्टोमी, एंजियोप्लास्टी, इंक्लूडिंग एस्पिरेशन, थ्रोम्बेक्टोमी व्हेन परफॉर्म्ड सिंगल वेसल। ठीक है, तो एथरेक्टोमी भी इसके अंदर ही है, और ये भी सिंगल वेसल है, मतलब कि इसका भी ऐसा ही है, ये 2 3 बार कभी भी यूज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो गया। उसके बाद में 43, 92943 ये हमारा क्रॉनिक अक्लूजन का है ना, रीवास्कुलराइजेशन ऑफ क्रॉनिक अक्लूजन, ये भी सिंगल वेसल है, तो इसको भी ठीक है। और इसका जो है वो एड ऑन 92944 ईच एडिशनल ब्रांच, मतलब कि जो भी हमने क्राइटेरिया बताया ना, पोस्टेरो लैटरल, पोस्टीरियर डिसेंडिंग, मार्जिनल, डायगोनल, वो जब होगा ना तब यूज होगा, और प्राइमरी इसमें से होगी। ओके, 92937 जो है वो क्या है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी थ्रोम्बेक्टोमी, मैकेनिकल। ठीक है, तो ये थ्रोम्बेक्टोमी का कोड है 92973, और ये एड ऑन है, और इसका प्राइमरी इसमें से होगा, ये बहुत लंबा लिस्ट है, तो इसमें से कोई भी एक सीपीटी होगा जो प्राइमरी जाएगा। 92974 है वो क्या है, ट्रांस कैथेटर प्लेसमेंट ऑफ रेडिएशन डिलीवरी डिवाइस फॉर सब्सिक्वेंट कोरोनरी इंट्रावास्कुलर ब्रेकीथेरापी। ओके, 92975 थ्रोम्बोलाइसिस कोरोनरी। ओके, अब 92978 है ना, वो क्या है, एंडोल्यूमिनल इमेजिंग ऑफ कोरोनरी वेसल और ग्राफ्ट यूजिंग आईवस, है ना, तो इसको हम आईवस के जरिए याद रखेंगे, लेकिन ये भी क्या है, इनिशियल वेसल है 92978। ठीक है, आईवस इनिशियल वेसल, एड ऑन कोड है।
ठीक है, तो इनिशियल वेसल है तो ऑब्वियसली इसका भी मतलब कि कभी भी ऐसा होगा नहीं ना। ठीक है, ओके। तो ये इनिशियल वेसल का है और इसका प्राइमरी इसमें से होगा। ठीक है, 92979 ये है ईच एडिशनल वेसल, है ना। तो वेसल अगर कोई और भी है जिसमें आईवस है तो फिर 92979 भी होगा। ओके, तो यहाँ तक हमने कोड देखा। अब यहाँ से एक एग्जांपल जो दिया हुआ है वो देखेंगे और बाद में क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल जो सेट 1 2 3 है ना उसमें से करेंगे। तो इसमें दिया है कि 54-year-old मैन हैड हार्ट कैथेटराइजेशन डन अर्लियर टुडे एंड शोड ए हेजी लीजन इन द मिड एलएडी। ठीक है, तो वेसल कौन सा हो गया, एलएडी, है ना। तो मॉडिफायर कौन सा होगा, एलडी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है 70% विथ पॉसिबल डायसेक्शन वर्सेस क्लॉट। द पेशेंट वॉज scheduled टू रिटर्न फॉर सर्जरी। तो ये scheduled टू रिटर्न फॉर सर्जरी मतलब क्या हो गया, स्टेजिंग हो गया, 58 मॉडिफायर का सीन बन गया है। ठीक है, scheduled टू रिटर्न फॉर सर्जरी मतलब कि स्टेज में किया, मतलब ऑलरेडी स्टेज schedule कर दिया गया है, तो 58 का भी हो जाएगा। His right groin was prepped and wrapped. He already had a 6 French sheath in the right femoral artery. An export thrombectomy catheter was used to remove the clot. ठीक है, तो मतलब कि थ्रोम्बेक्टोमी हुआ है। Then a chromium stent was deployed with excellent angiographic result. No residual stenosis. No evidence of proximal or distal dissection with distal flow. ठीक है, तो स्टैंटिंग भी हुआ है। ठीक है, तो स्टैंटिंग हुआ तो आप देख सकते हो 92928 भी आ गया है यहाँ पे। ठीक है, 58 मॉडिफायर लगा है और वेसल जो है वो एलईडी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है। और 92973 है वो क्या है, थ्रोम्बेक्टोमी है। अभी हमने देखा ना 92973 थ्रोम्बेक्टोमी। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। ठीक है, थ्रोम्बेक्टोमी। ओके, तो यहाँ पे पूरा मैचिंग हो रहा है और ये सब मिड एलईडी और वो सब है, तो ये इसका आंसर है। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में ये कैसे काम करता है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा समरी दिया है वो देख लेते हैं। गाइडलाइन, व्हेन ए सिंगल लीजन स्पांस टू मेजर वेसल्स यूज वन कोड। ठीक है, एक सिंगल लीजन होगा लेकिन दो मेजर वेसल में बैठेगा तो फिर एक ही कोड यूज होगा। नंबर 2 में क्या दिया, व्हेन पीसीआई इज परफॉर्म ड्यूरिंग सीएबीजी रिपोर्ट सेपरेटली, रिपोर्ट ईच सेपरेटली। ठीक है, तो पीसीआई अलग होगा, सीएबीजी अलग होगा। थर्ड नंबर में है यूज ओनली वन रिवास्कुलराइजेशन कोड। 3 कोड है ना, 92943, 92941, 92937। तो उसमें से एट ए टाइम एक ही यूज होगा, ऐसा नहीं कि 2 या 3 एक साथ कभी नहीं होंगे। ओके, 4 नंबर में क्या मिल रहा है, इफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्स टू एक्सेस द कोरोनरी आर्टरी थ्रू बाईपास ग्राफ्ट यूज एडिशनल कोड टू रिपोर्ट इंटरवेंशन परफॉर्म्ड वाया द बाईपास। ठीक है, तो ये हमने 4 गाइडलाइन देखी। अब देखेंगे क्वेश्चन इसके रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है तो कैसे करना है। ठीक है, तो 92941, 943, 92928 इस तरह का कुछ मिलेगा ना, तो वहाँ पे हम देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे कोशिश। इसमें से कोई है ही नहीं, तो फिर इसमें से ये वैक्सीन वाला कर लेते हैं। ठीक है, 5 नंबर देखो क्या लिखा है। पहले एबीसीडी देख लो। ठीक है, एबीसीडी में से कुछ हो सकता है तो देख लो कि कुछ निकल सकता है तो बिना क्वेश्चन को रीड करे हुए। ठीक है, तो 471 एक बार है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 460 3 बार है, 470 एक बार, 472 2 बार और 463 और। ठीक है, तो एबीसीडी में देख के कुछ हो नहीं पाएगा, आप क्वेश्चन पढ़ो या क्वेश्चन देखो, रीड करो। रीड करो, रीड करना है, रीड किसी को भी एक को करना है, वेट न मत करो किसी का भी, कोई भी एक स्टार्ट करो।
A 4 years old is getting 3 immunization in the pediatrician office by the nurse practitioner. The mother is counseled on all the vaccine. The first vaccination ओके, तो is एक मिनट, यहाँ पे ये इतना पढ़ा ना तो क्या हो गया, एज हमारा 18 तक का है और काउंसलिंग भी है, तो फिर फोकस Counseling. हमारा किस पे होना चाहिए, बी और सी पे, 9460 है C. ना। ए और डी निकाल देंगे हम, ठीक है, बी और सी में से हम देखेंगे। और आगे देखो क्वेश्चन। the first vaccination is polio vaccine inactivate given muscularly. The next vaccination is diphtheria, tetanus, and acicular pertussis administered intramuscularly. The last vaccination is the varicella live by subcutaneous route. ओके, और तो यहाँ इतना पूरा पढ़ा ना तो हमको क्या पता चला, टोटल वैक्सीन कितनी है, IVT 3 है ना, 3 वैक्सीन है, ठीक है। कौन कौन सी है, एक तो पोलियो की हो गई फर्स्ट, फिर दूसरी वाली जो है वो DTaP. डीटीपी वाली हो गई, डीटैप हो गई, और तीसरी जो है वो वेरिसेला, 3 है Varicella. है ना। तो प्रोडक्ट कोड 3 होने चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास ये जो 3 बार होना चाहिए, और ये कम से कम 2 कंपोनेंट है ना, डी टैप में 2 रह गए, तो इसके लिए ये, तो आंसर हमारा यही होगा, है ना। C. क्यों, क्योंकि 3 प्रोडक्ट कोड भी होने चाहिए, तो 3 प्रोडक्ट कोड भी मिल गए, और जो ये है वो 460 अलग अलग 3 कॉम्बिनेशन वैक्सीन है ना, तो इसकी वजह से फर्स्ट कंपोनेंट के लिए एक एक बार करेंगे तो 3 वैक्सीन से 3 हो गए, ठीक है। और इसमें 2 है तो फिर 2 एडिशनल हो गए, तो ये 461 2, तो ये बी का तो सिलेक्ट करने का जरूरत ही नहीं है, वैसे ही गलत है। क्यों गलत है, एक तो प्रोडक्ट कोड भी 2 ही है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे ये 3 है, लेकिन डी टैप के जो 2 कंपोनेंट रह गए वो तो है ही नहीं, तो बी गलत हो गया। कौन सा होगा आंसर, सी होगा, C. है ना। तो ये अगर आपने प्रॉपर तैयारी करी है ना तो इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ेगी आपको, ज्यादा बुक में मतलब देखना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एकदम क्लियर कट है कि 3 कोड हमारे वैक्सीन के हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर है। हेलो। yes sir. Yes, sir. ओके, अब ये वाला देखो, 4 नंबर मिल गया हमको क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, जिम अंडरवेंट कोड फॉर परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल रीवास्कुलराइजेशन ऑफ acute total subtotal occlusion during acute myocardial infarction coronary artery intracoronary stent single vessel। ये बहुत ही सिंपल है, क्या होगा आंसर, A. ए होगा, है ना, 92941, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर कट है। ओके, और कोई सर ये डाउट है एक्चुअली क्वेश्चन क्या, 4 में। कौन से क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन 4 में ओके, ऑप्शन बी क्या है? एक और ऑप्शन बी ओपन जो करो है एक वो बार क्या इसको। है, 943 क्या होता है, टोटल क्रॉनिक अक्लूजन होता है ना, क्रॉनिक, ठीक है। 9 to 943 क्या होगा, क्रॉनिक होगा, और 941 होगा वो एक्यूट होगा, हमने अभी पढ़ा ना। देखो यहाँ पे क्या है, एक्यूट टोटल तो 941 है, अगर 43 देखोगे तो क्या है, क्रॉनिक टोटल है, क्लियर है, ओके ठीक है। तो ये इसमें इतना ही है, तो मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, दूसरे में देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन करने से ही आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे करना होगा इसमें। ओके, 5 नंबर देखो, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, हम टेबल अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो पहले तो सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे और साइड में रखते जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखो क्या लिखा है 5 नंबर में, पढ़ो A पढ़ो, क्वेश्चन 55 पढ़ना है। A 55-year-old female has experienced several episodes of chest tightness. Her provider ordered a PTCA, percutaneous transluminal coronary angioplasty of the left circumflex coronary artery. The ओके, procedure तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या हुआ है, पीटीसीए, और जो वेसल है वो कौन सा है, एलसी, है ना, लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, तो ये मैंने लिख लिया, और आगे
The procedure revealed atherosclerosis in the native vessels and arthrectomy and insertion of a stent are also performed. What procedure code are reported? ओके, तो यहाँ पे पीटीसीए भी है और स्टेंटिंग भी है ना। तो स्टेंटिंग क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो अब मैं स्टेंटिंग लिख दिया। ठीक है, तो हाईएस्ट है तो मैं पहले ये लिख दिया। फिर एथरेक्टोमी भी दिया है ना, एथरेक्टोमी है ना। तो एथरेक्टोमी भी है, एथरेक्टोमी। और पीटीसीए तो ऑलरेडी दिया हुआ, ये तीनों चीज है। और वेसल कौन सा है, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स है, एक ही वेसल है। ठीक है, और हमें पता है कि ये तीनों एक ही कोड में हो सकता है, स्टेंटिंग, एथरेक्टोमी और एंजियोप्लास्टी। हमने देखा था ना कौन से होते हैं कोड में, 9298 में मिलता 9293 है। सॉरी 933 में मिलता है ना। डबल 9298 में तो दो ही होगा। ठीक है, 92933 है, वहाँ पे ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला है, सी, है ना। अब देखेंगे कि बाकी के क्यों गलत है। तो देखो 92920 पहले लगा है और 92928 बाद में है, तो ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि 92920 ठीक है, तो ये इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, फिर 92933 ये, और ये इसका एड ऑन कोड है। ठीक है, तो एड ऑन कोड मैंने आपको क्या बताया कब यूज होता है, जब ब्रांच का नाम होगा ना तब। ब्रांचेस। यहाँ पे ऐसा कोई ब्रांच का नाम ही नहीं है, तो एड ऑन का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर 92924 में क्या होता है, खाली दो चीजें होती है, एथरेक्टोमी और एनजीओ, है ना। अगर स्टेंटिंग नहीं है तो फिर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्टेंटिंग भी है, तो 92924 तो काम का है ही नहीं। ठीक है, हमारा आंसर ये है। ठीक है, तो प्रिपरेशन अच्छा किया होगा ना, तो ये वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, मतलब बुक का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस है तो हम करना है, नहीं तो देख लेना है बुक में। ठीक है, ओके, 7 नंबर जो है वो वैक्सीनेशन का कोड है। और देखो क्या हो सकता है। ये तो वही कोड, वही आंसर है, मतलब वही क्वेश्चन है ना। आई थिंक हाँ वही क्वेश्चन है, तो यस सर, वही है। वही है। ठीक है, 10 नंबर देखो, क्या लिखा है, विच सीपीटी कोड शुड यू रिपोर्ट फॉर स्टेंटिंग ऑफ द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एलडी आर्टरी एंड फर्स्ट डायगोनल क्या हो गया, फर्स्ट Add on. डायगोनल एड ऑन। एड Add ऑन, on गुड, code. वेरी गुड, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेंटिंग किसका है, एलडी का है। और फर्स्ट डायगोनल मतलब कि हमें उसके साथ में एड ऑन भी यूज करना पड़ेगा। तो स्टेंटिंग ऑफ एलईडी होगा ना, तो फिर क्या होगा कोड, स्टेंटिंग है तो क्या होगा, 92920. नहीं, 92920 तो 28. एंजियोप्लास्टी है, 28. 92928 है ना। और उसका एड ऑन का क्या होता है, 92929 होता है। ठीक है, तो 92928 में हमें डी। पता है कि क्या होता है, एंजियो स्टेंटिंग होता है और एंजियोप्लास्टी भी होती है ना। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे स्टेंटिंग दिया है तो ये है ना। 92933 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 92933 में तीनों चीज होता है, एथरेक्टोमी भी होता है, लेकिन एथरेक्टोमी यहाँ पे है नहीं, तो ये तो जाएगा नहीं, बी डी नहीं जाएगा। ठीक है, और ये भी नहीं जाएगा क्योंकि 92920 सिंपल एंजियोप्लास्टी है, स्टेंटिंग है नहीं। और ये है तो कॉम्बिनेशन मतलब हमारा गलत हो जाएगा। खाली अकेले से भी नहीं बनेगा क्योंकि फर्स्ट डायगोनल, तो आंसर कौन सा होगा, बी हो गया हमारा आंसर, बॉम्बे। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो एक बार तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरे पेपर में अगर कोई इस तरह का है क्वेश्चन तो देख लेते हैं। ओके, 3 नंबर का कुछ वैक्सीन का लग रहा है ना। तो क्या लिखा है, 14-year-old पेशेंट हु इज परफेक्टली हेल्दी अपडेट्स हिज वैक्सीन टुडे। 14 ईयर है और काउंसलिंग का देखेंगे, ये रिसीव टीडी वैक्सीन और इंट्रामस्कुलरली, ए ब्रीफ एजुकेशन ऑन वैक्सीनेशन वाज गिवन एज ए काउंसलिंग टू द पेशेंट। ठीक है, तो मतलब कि क्या हुआ, 460 वाला ही सिलेक्ट करेंगे हम, है ना। सी और डी में से होगा और ए और बी निकाल देंगे हम। ठीक है, सी और डी में से होगा, कोड द अप्रोप्रिएट सीपीटी।
अब यहाँ पे सी में क्या है, 460 और 461 है, और यहाँ पे एक ही है, और वैक्सीन हमारी क्या है, टीडी वैक्सीन है। ठीक है, और टीडी है तो फिर क्या होगा, 909714 में देखेंगे, मतलब कि कंपोनेंट है या नहीं है वो देखना है ना, तो उसके लिए फिर क्या है, यहाँ पे देख लेना है। तो यहाँ कितना है, टेटनस एंड डिप्थेरिया टॉक्सोइड्स absorbed TD preservative free when administered to individual 7 years और older। ठीक है, तो यहाँ पे मैच हो रहा है, एज 14 ईयर्स है। ठीक है, तो अब क्या होगा, आंसर इसमें से कौन सा होगा? डी। उस समय तो काफी लोग अनएम्प्लॉयड थे। कौन सा होगा आंसर? डी। 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 डी होगा। ओके, टेटनस, आई मीन एक बार देखो डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, क्या सीपीटी का डिस्क्रिप्शन? सीपीटी का डिस्क्रिप्शन में क्या मिल रहा है हमें? दो चीज है ना, टेटनस एंड डिप्थेरिया, दो तो है, तो कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? टेटनस एंड डिप्थेरिया टॉक्सोइड्स। ठीक है, एस भी लगा है, मतलब प्लूरल होगा, तो दो हो गए ना, तो फिर टू कंपोनेंट वाला कंपोनेंट्स। कंसेप्ट होगा ना, तो कौन सा होगा, सी सी होगा, होना सी। चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे इससे अगर आप ऐसे का सोच रहे होगे ना कि भाई ये एक है, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो ये कॉम्बो वैक्सीन होगा, तो फिर एक ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वैक्सीन है और कंपोनेंट दो है, तो इसकी वजह से इस तरह से ये वाला सही है। ओके, और नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो सीरीज है ना, उसमें 9200 वाली जो होती है ना, इसमें देखेंगे हम। कहाँ गया, 5 है। ओके, तो ये क्या होता है, देखो, जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिक सर्विसेज है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 92002, यहाँ पे लिखा है कि डिस्क्रिप्शन में ऑप्थेल्मोलॉजिकल सर्विसेज, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन विथ इनिशिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम इंटरमीडिएट न्यू पेशेंट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो मॉडिफायर है कौन कौन से, 24, 25, 27 और 57, 27। ये किसके साथ में जाएंगे, 99202 से 99499, है ना। 499। लेकिन ये जो सीपीटी है ना, उसके अंदर इवेल्युएशन आ रहा है ना, 92002 है, फिर आगे वाली कौन सी है, 4 है, 92004, ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यू पेशेंट। ठीक है, और ऐसे ही एस्टाब्लिश पेशेंट में 92012 और 92014, ये जो 4 सीपीटी है ना, उसके साथ में हम ये यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अंदर इवेल्युएशन आ रहा है, इसलिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, 92012 और 920, क्या है यार, 9224 और 12, हाँ। ठीक है, तो ये जो है वो मॉडिफायर। ठीक है, तो इसके साथ में थोड़ा ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो मैंने, अगर आपको याद होगा ना, तो जब भी हम वो मॉडिफायर का प्रैक्टिस करते थे ना, तो आपको वो सेक्शन थोड़ा सा मैं अवॉइड करवाता था, वो अभी करवा लेता हूँ। ठीक है, तो कोई ये नहीं होगा, इश्यू नहीं होगा। ओके, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है सारे के सारे सही है। देखो, 92002 साथ में 25 है,
तो जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको इसमें बोला है तो इसमें भले नहीं है, ये अगर कोड है सीपीटी देखोगे तो इसके अंदर नहीं आता है ना, लेकिन फिर भी सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक तरह से इवेल्युएशन का ही सीपीटी है। ठीक है, तो अगर आपके पास एनकोडर है ना, जितने भी कोडिंग वाले हैं ना, तो एनकोडर में देख लेना। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल मॉडिफायर ये बताएगा, 25 मॉडिफायर होगा उसमें। ठीक है, 92004 के साथ में भी जा सकता है, 12 के साथ में, 92014 के साथ में भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे कि ये सीपीटी तो इसके अंदर आती ही नहीं है, तो कैसे कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है अंदर ही इसमें आ रहा है कि इवेल्युएशन आ रहा है ना, तो इसकी वजह से इसके साथ में लगा सकते हैं 25 मॉडिफायर या जो भी इवेल्युएशन का है, बाकी के भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सीन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. Okay. ओके, तो बस इतना ध्यान रखना है, बाकी का जो भी होगा वो आपको रीडिंग वाला ही है, मतलब कि रीडिंग से हो जाएगा, गाइडलाइन का कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हमारा मेडिसिन खत्म, और आगे का जो है वो एक पिक्स वाला देखते हैं। तो एक पिक्स में सिंपल तरीका है, एक पिक्स में कोई भी गाइडलाइन नहीं है। एक पिक्स में कैसे करना है, जैसे न्यूज़पेपर में हम लोग पहले पजल करते थे ना, कि कुछ आता था मतलब पजल, बस उस तरह का हमें देखना है कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, अगर एक पिक्स करना है ना, तो आपको ये वाली साइट ओपन करनी है, ICD-10 CM वाला जो होता है ना, ICD-10data.com। उसमें कहाँ जाना है, हिक पिक्स में जाना है। और हिक पिक्स में आप देख सकते हो कि दो ऑप्शन है, कोड का अलग है और मॉडिफायर का अलग है। ठीक है, तो कोड में देखना है तो कोड में जाना है, मॉडिफायर में जाना है तो फिर मॉडिफायर का मिल जाएगा। ठीक है, सपोज मैं कोड में सिलेक्ट करता हूँ, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें से, सेट 1 में से। ओके, सपोज मुझे ये देखना है, 85 नंबर में क्या लिखा है, स्किल्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर 45 मिनट्स, हाउ वुड यू रिपोर्ट द सर्विस। ओके, तो यहाँ पे एक ही मात्र कोड है जो कि H2014 है, और यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, और यहाँ नन ऑफ द अबोव ऐसा करके मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे H वाला है ना, तो यहाँ कैसे करेंगे, H वाला H कोड पे ऊपर क्लिक करेंगे और 2014 ढूंढेंगे। तो इसमें क्या मिल रहा है, स्किल्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर 15 मिनट्स, है ना, हर 15 मिनट के लिए ये एक बार यूज करना है। तो फिर आंसर क्या हो गया इसका, D. 15 मिनट के लिए, हाँ, तो डी दिल्ली हो गया, है ना, 3 बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या लिखा है, कोड फॉर नी ऑर्थोसिस विदाउट नी जॉइंट। ये विदाउट और ये सब होगा ना, वो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट नी जॉइंट है और रिजिड है, और दूसरा दिया है कि कस्टम फैब्रिकेटेड। और कोड कौन से हैं, 1810, 32 और 34, ये 3 मतलब 4 कोड है। ठीक है, तो एल में जाना होगा, IJKL। ठीक है, और 1800 में क्या होता है, कौन सा है CPT, 1800, 1810 भी है। ठीक है, ठीक है, तो 1800 आई थिंक डिलीट हो गया है, जो भी हो गया है, 10 वाला है। ठीक है, तो 10 में क्या मिल रहा है, नी ऑर्थोसिस इलास्टिक विथ जॉइंट। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन में जो है वो क्या है, विदाउट जॉइंट है ना, तो ये तो होगा नहीं, विथ जॉइंट है तो ये भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, 32, 34। ठीक है, 32 देखते हैं, तो 32 में क्या दिया है, एडजस्टेबल नी जॉइंट्स, positional or the rigid support prefabricated item that has been trimmed, bent, molded, assembled or otherwise customized to fit। और 34 में क्या है, नी ऑर्थो विदाउट नी जॉइंट रिजिड कस्टम फैब्रिकेटेड, क्या होगा आंसर, 1834 या, है ना, तो डी हो गया आंसर, है ना, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे ना तो कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, तीसरा देखते हैं, 67-year-old newly diagnosed with IDDM type 1 is being seen in the office today for diabetic training with office dietitian.
The training was for an hour and covered special diet instructions, blood glucose monitoring and instruction on how to administer daily insulin injections. ठीक है, तो ट्रेनिंग दिया गया है और टाइमिंग है 1 घंटे का. Which HCPCS modifier I mean level 2 codes will be reported. G0108 है, 0109 और यहाँ पे A वाला भी है और D वाला भी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये सब ग्लूकोज ग्लूकोज वाला है तो पहले हम जी वाला देख लेते हैं. तो जी वाले में देखेंगे क्या होगा. जी 108 और 109 है ना. ओके, यहाँ पे मिल रहा है कि डायबिटीज आउट पेशेंट सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सर्विसेज इंडिविजुअल पर 30 मिनट. ओके, दूसरा क्या है 109 है डायबिटीज आउट पेशेंट सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सर्विस ग्रुप सेशन 2 और मोर. तो ग्रुप का तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा है ना. ठीक है, तो इसको तो हटा ही देंगे, मतलब ये जा सकता है. टाइम्स 2 है ना, क्योंकि 60 मिनट है तो टाइम्स 2 करना पड़ेगा क्योंकि कोड 30 मिनट का है. ठीक है, 108 आप देख सकते हो पर 30 मिनट तो डबल तो होगा ही होगा. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा है कि ये होगा ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे टिक कर दूंगा मैं, है ना. एक बार जरूर से ये देखूंगा, भले ये मेरे को लग रहा है हो रहा है लेकिन कम से कम देखना तो है ही है. ठीक है, तो A4211 देखेंगे और S9214 भी एक बार देख करके ही बाद में टिक लगाएंगे. ठीक है, तो A4211 देखेंगे पहले. यहाँ पे क्या मिल रहा है, सप्लाईज फॉर सेल्फ एडमिनिस्टर्ड इंजेक्शन सप्लाईज, है ना. तो ऐसे कोई सप्लाईज वाली कोई बात है नहीं यहाँ पे, है ना. कोई सप्लाई दिया गया है, कुछ सैंपल दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये निकल गया. S9214 देखेंगे. ओके, 9214 में क्या मिल रहा है, होम मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज इंक्लूड. ऐसा कोई जेस्टेशनल वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना. ठीक है, कोई जेस्टेशनल का तो कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, तो ये भी नहीं है. आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ए, है ना. तो इस तरह से करेंगे और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इसमें से देखते हैं. 78 नंबर में क्या दिया है, मेल 62-year-old पेशेंट फॉर ए डिजिटल रेक्टल एग्जाम एंड टोटल प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट PSA विच कोड वुड बी यूज्ड. 102 103 102 यहाँ पे भी है. और ठीक है, तो जी 102 पहले देखते हैं. ओके, यहाँ पे लिखा है प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, तो वो तो होना है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ना. ठीक है, तो 102 कहाँ पे है, वहाँ पे ही हम फोकस करेंगे. ए है, बी है, ए है, सी है और डी में भी है. ठीक है, और ये 103 है, ये 106 है. तो 103 में क्या मिल रहा है, 103 में प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट. कैंसर स्क्रीनिंग की बात हो रही है, प्रोस्टेट कैंसर ऐसा कुछ है इसमें, कैंसर का कुछ भी नहीं है तो ये नहीं होगा. ठीक है, 106 देखते हैं. कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग ऑल्टरनेटिव टू G0104 स्क्रीन. कैंसर स्क्रीनिंग का कुछ है ही नहीं ना, नहीं है तो ये भी नहीं होगा. ठीक है, और G0103 वो तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ना. G0103 प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट PSA PSA लेकिन मेरे पास दिया हुआ है ना. yes sir PSA तो है. ठीक है, तो मतलब कि 103 भी होना चाहिए और 102 भी होना चाहिए. और 106 क्या है, कोलोरेक्टल है, तो PSA भी नहीं है. तो ठीक है, फिर अब क्या होगा आंसर, डी हो जाएगा, डी. ठीक है, क्लियर है. हेलो, okay sir या समझ में आ रहा है बाकी के लोगों को. प्रमोद कौन है, शिल्पा, Yes, sir.
है ना, तो डी होगा। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है कोई कोई क्वेश्चन में, ठीक है, तो लेकिन ध्यान से पढ़ना है। आगे वाले में क्या है, 63-year-old मेल मेडिकेयर रेसिपिएंट receives 30 minutes of individual diabetes outpatient self management training। ये तो शायद हमने अभी अभी देखा भी था ना, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। कौन सा है, 108 है, 109 भी है। 108 तो ये रहा, ठीक है। डायबिटीज आउट पेशेंट सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सर्विस इंडिविजुअल पर 30 मिनट, ठीक है। और 109 है वो ग्रुप वाला है, तो हमारे पास इंडिविजुअल का ही है, ग्रुप वाला है नहीं, ठीक है। तो 30 मिनट है, तो क्या होगा, डी ही होगा यहाँ पे भी, है ना, डी होगा आंसर। यहाँ पे ये देखने का ये एक बार देख लेंगे, लेकिन ये तो हमें पता है कि ईएनएम का कोड है, ठीक है। तो G0176 क्या होता है, एक्टिविटी थेरापी सच एज म्यूजिक डांस आर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में 80 नंबर में मेडिकेयर रेसिपिएंट प्रेजेंट्स फॉर इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन। जी वाले ही हैं सारे, 8 है, 9 है, और 8 9 दोनों मिक्स है, और 10 और 8 भी है। 8 में क्या मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन, तो इन्फ्लुएंजा तो वही है। और दूसरा, मतलब कि अकेले से तो होगा नहीं, न्यूमोकोकल का भी होना चाहिए, तो 9 का क्या है, न्यूमोकोकल भी है ना। तो ये कॉम्बिनेशन ये कहाँ पे मिल रहा है, सी में मिल रहा है। अब 10 वाले में क्या है, एडमिन से हेपेटाइटिस, ऐसा नहीं होगा, हेपेटाइटिस तो है ही नहीं, तो क्या होगा आंसर, सी ही होगा, है ना। तो ये जो 3 क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि मिनट आपको क्या लगना है, 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट, ठीक है। तो लेकिन चारों ऑप्शन देखना है आपको, ऐसा नहीं है कि एक में अगर मिल गया ना, काफी सारी चीजें मिलती जुलती है, तो जल्दबाजी में उसको टिक नहीं करना है, बाकी के ऑप्शन को भी देख लेना है एक बार, और उसके बाद में ही उसको टिक करना है, ठीक है। और 3 में से कोशिश ये करनी है कि तीनों के तीनों सही करने की ये थोड़ी कोशिश करनी है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो 69 लाते हैं ना, जो भी जिनके ऐसे होते हैं किससे कि 69 आके रुक गए, तो उनका अगर एनालिसिस करोगे ना, तो उसमें HCPCS में 2 आए होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो HCPCS में ही मिल गया होता ना 1 मार्क, तो पास गए हो गए होते, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें कोशिश करनी है कि HCPCS में अगर तीनों सही हो जाए, हो भी सकते हैं क्योंकि इतना मुश्किल होता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसमें है ना मॉडिफायर भी आता है, तो तभी थोड़ा सा ये देखना पड़ता है, मतलब कि मॉडिफायर के लिए भी देखने का टाइम लग जाता है, ऐसा है। तो उसमें बात अलग है, लेकिन अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आ गए ना, तो फिर तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा स्कोप है, 100% माने तीनों के तीनों सही करने का स्कोप है हमारे पास में, ठीक है। तो 4 पेपर जो मेरे हैं ना, उसमें से आपको कम से कम प्रैक्टिस करते ही रहना है, ठीक है। इजी लगता है तो भी करना है प्रैक्टिस, और डिफिकल्ट लगता है तब तो एकदम जरूरी हो जाता है कि करना ही करना है। लेकिन उसको जो भी है बुक में से देखना है, और एक वीडियो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब कि बुक कैसी होती है ना, उसका वीडियो है। बुक में कैसे आगे क्या होता है, पीछे के जो बैक कवर पेजेस है उसमें क्या मिलता है, वो सब आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बुक मिलेगा, इसका देख सकते हो कि जो कवर पेज है ना, वो फोल्डेबल होगा, ठीक है। इसको भी ऐसे फोल्ड करके ओपन करेगा, यहाँ से ऐसे पलटी मार के, यहाँ पे मॉडिफायर ही है, ठीक है। ये जो है वो मॉडिफायर है, सारे के सारे मॉडिफायर है ना। तो ये देखो, ये पूरे के पूरे जो भी है ना मॉडिफायर का ही है।
ये बैक वाला है, ठीक है। तो बैक में भी ऐसा फोल्डेबल ही है, ये भी ऐसे फोल्ड होगा। और सारे के सारे ये ऊपर जो है ना, ये देख रहे हो वो क्या है, हिकपिक्स वाले जो एनेस्थेसिया वाले जो होते हैं ना, ए और वो सब वो है। और ये भी सारे के सारे मॉडिफायर ही है, ठीक है। टोटली A to Z जो भी मॉडिफायर होगा ना, आपको यहाँ से या मिल जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, तो कुछ आगे मिलेंगे और कुछ पीछे मिलेंगे। और अंदर भी मिलेंगे, अंदर भी होगा मॉडिफायर का पूरा अपेंडिक्स मिलता है। तो इसमें अभी अपेंडिक्स आई मीन इंडेक्स भी बताया है, इंडेक्स में जो अपेंडिक्स का जो लिस्ट है वो देखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो अपेंडिक्स लिखा है ना। तो यहाँ पे ये जो होगा ना वो मॉडिफायर का मिल जाएगा आपको। यहाँ पे पेन लिखा है ना, अपेंडिक्स बी हिकपिक्स लेवल 2 मॉडिफायर। ठीक है, तो अंदर भी है और आपको बार कवर पेज इसमें भी मिल जाएगा मॉडिफायर। तो फटाफट कवर पेज इसमें से देखने की कोशिश करनी है। और अंदर का जरूरत वैसे पड़ेगा नहीं, अंदर बुक के अंदर देखने का। कोड देखने में बात अलग है, लेकिन मॉडिफायर की बात कर रहा हूँ मैं। कोड तो अंदर से ही मिलेंगे। ओके, तो हिक पिक्स का हमने कर लिया है। और अभी बाकी क्या रह गया है, कार्डियोवास्कुलर रह गया है। और अपेंडिक्स जो हमारा है, मतलब कि सीपीटी की बुक में अपेंडिक्स नई जो है गाइडलाइन है, आई मीन नई बुक है 2023। तो उसमें कहाँ से कहाँ तक का हुआ है, ए से लेकर के टी तक हो गया है अपेंडिक्स अभी, है ना। 2000 बुक में क्या हो गया है, अपेंडिक्स A to T हो गया है। सही है ना, देखो थोड़ा कोई भी देख लो एक बार। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. है ना। हाँ. T तक. तो वो भी हम हम्म. देखेंगे। और कार्डियोवास्कुलर का इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर क्या करना है, आज का करना है स्टार्ट या कल से करना है, बता दीजिए। कल से करेंगे सर। कल से करेंगे, ओके। तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर, ठीक है। 170 पेज पे हम जाते हैं। और जो MRT है ना, ठीक है। तो 40,000 का कौन बताएगा, 40,000 का कोई भी इनिशिएटिव लो और यहाँ से बताओ क्या होता है। 42820, व्हाट इज 42820? टॉन्सिलेक्टोमी एंड एडिनोइडेक्टोमी लेस देन 12 ईयर्स। और ये 42821 क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 ईयर्स। ठीक है, किया है कि नहीं किया है किसी ने भी, मतलब आंसर क्यों कोई बोल ही नहीं रहा है। शिल्पा, प्रियंका, सर हेलो, ये रिवाइज किया है अभी. नहीं किया है। सर. नो सर. ओके, कौन सा किया है बता दीजिए। सर पहले से एक बार करते हैं ना. ठीक है, पहले से मतलब एनेस्थेसिया से। हाँ. ओके, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट कीजिए। 99,100 क्या होता है, एक्सट्रीम 100 एज। less than 1.5 greater than 6. ओके, गुड। तो इसकी प्राइमरी में हम क्या ध्यान में रखेंगे, कौन सी चार यूज नहीं होगी इसमें। 326 561 326 561 834 36. ओके, तो ये नहीं जाएगी, है ना। और दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि ये मतलब एग्जैक्टली एज 1 ईयर और 70 ईयर होगा तब भी इसका कोई यूज तभी नहीं होगा, कोई है ना। जाएगा. हाँ. ओके, गुड। 116 क्या होता है, हाइपोथर्मिया. हाइपोथर्मिया. हाइपोथर्मिया, ये क्या होगा। हाइपोटेंशन. ओके, हाइपोटेंशन. और ये 140। इमरजेंसी Emergency कंडीशन. ओके, तो अब ये जो है वो एड ऑन है, चारों की चारों सीपीटी एड ऑन है। तो मतलब कि इसकी प्राइमरी होगी वो कौन सी होगी, 0, 0, 100 से लेकर के 0, 1, 999 में से ही होगी, है ना। है ना, और इसमें से चार नहीं जाएगी, वो भी हमने देख लिया है।
और दूसरा क्या होता है कि इसके साथ में कोई भी मॉडिफायर नहीं लगेगा, है ना। फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर नहीं लगना चाहिए और एक पिक्स लेवल 2 मॉडिफायर भी नहीं लगना चाहिए ये वाली सीपीटी के साथ में। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी है ऐसा ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे उसको निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनेस्थेसिया का। फिर ये क्या है 11042 11047 Wound debridement. वुंड Debridement. डेब्राइडमेंट। तो वुंड डेब्राइडमेंट में की गाइडलाइन क्या थी? यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर Square सेंटीमीटर होगा। Centimeter. ठीक है, Square और centimeter दूसरा हम होगा। क्या देखेंगे? डेप्थ ऑफ द डेब्रिडमेंट। तो डेप्थ ऑफ डेब्रिडमेंट में क्या क्या मिल सकता है? एपिडर्मिस, डर्मिस, Epidermis, सबक्यूटेनियस, dermis. मसल फेसिया Subcutaneous, muscle fascia, और and bone. बोन, है ना। तो Bone. ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि अगर ऐसा है कि डेप्थ कितना? सेम है ना, लोकेशन अलग अलग है लेकिन डेप्थ सेम है, तो फिर हम उसको Depth. क्या करेंगे? ऐड कर सकते हैं, Add कर देंगे. है ना। और जो भी एडिशन वाला वैल्यू होगा उसका एक सीपीटी लगा देंगे। ओके। उसके बाद में मल्टीपल डेब्रिडमेंट है अलग अलग डेप्थ के, तो फिर कैसे करेंगे? Highest पहले highest करेंगे हाईएस्ट कोड ओके करेंगे फिर और उसको lowest के साथ 59 modifier. 15. ओके, एग्जैक्टली, वेरी गुड, है ना। तो लोवेस्ट वाला बाद में जाएगा और 59 मॉडिफायर भी लगाएंगे हम उसके साथ में। ओके, गुड। तो इसके बाद में हमने देखा था एक्सीजन। तो एक्सीजन में Excision. गाइडलाइन क्या थी? सबसे पहले मैलिग्नेंट और बिनाइन देखेंगे हम, है ना। And benign देखेंगे। तो Yes, sir. बिनाइन के लिए कुछ वर्ड्स था और मैलिग्नेंट के लिए कुछ वर्ड्स दिया हुआ है। तो क्या क्या होता है बिनाइन में और मैलिग्नेंट में? Benign में angioma, Benign में lipoma, एंजियोमा, लिपोमा, papilloma. पेपिलोमा, मैनिंजियोमा, है ना, जियोमा. फाइब्रोमा, ये सब होगा तो बिनाइन होगा। और अगर मैलिग्नेंट होगा तो फिर क्या होगा? सार्कोमा, कोमा, कार्सिनोमा। BCC, कार्सिनोमा, एंजियोकार्सिनोमा, बीसीसी, एससीसी. ओके, गुड, है ना। और बिनाइन का होगा तो फिर सीपीटी कौन सा होगा? 114 से स्टार्ट होगा। 114, और मैलिग्नेंट होगा तो 114, 116 से स्टार्ट होगा। 116. ठीक है। उसके बाद में हमने ओके, तो उसके बाद में हमने क्या देखा था कि डायमीटर का कंसेप्ट है एक्सीजन के अंदर। तो डायमीटर कैसे ढूंढेंगे हम? किस किस तरह से मिलेगा डायमीटर? size of wound plus margin into 2. यस, है ना। तो मार्जिन इंटू 2 करना पड़ेगा। और अदरवाइज अगर टोटल मार्जिन दे दिया है तो फिर उसको इंटू 2 नहीं करेंगे, डबल नहीं करेंगे, है ना। तो वो ध्यान में रखेंगे, मार्जिन जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे। और उसका हिसाब से जो भी डायमीटर मिलता है वो डायमीटर को सीपीटी में देखेंगे हम। ठीक है। उसके बाद में हमने गाइडलाइन में क्या देखा था? कोड ऑल एक्सीजन सेपरेटली। ठीक है, सेपरेटली. तो मतलब कि एक एक्सीजन है तो एक सीपीटी, दो एक्सीजन है तो दो, तीन है तो तीन, ऐसे, है ना। जितने एक्सीजन है उतनी सीपीटी लगेगी अलग। ठीक है, मिक्स नहीं हो सकता, एडिशन नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में क्या था कि अगर मान लो कोई एक्सीजन करता है और उसको फिर जो डिफेक्ट जनरेट होगी उसका जो क्लोजर होगा वो सिंपल टेक्निक से होगा। ठीक है, तो वो तो तो फिर क्या वो होगा? बंडल बंडल्ड ही करेगा. होगा, है ना। Bundle लेकिन है। अगर क्लोजर जो है वो इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स है तो फिर सेपरेटली फिर रिपोर्टेबल सेपरेटली होगा, पे है ना। करेंगे. गुड। उसके बाद में लास्ट में गाइडलाइन थी कि री एक्सीजन है तो मॉडिफायर 58 58 का मॉडिफायर. यूज होगा। 58. ठीक है, तो ये हो गया एक्सीजन। उसके बाद में हमने रिपेयर और क्लोजर का देखा था। तो रिपेयर में और क्लोजर में हमने क्या देखा था? तीन टाइप का होता है। ठीक है, तो तीन टाइप में सबसे पहला होता है सिंपल, है ना। तो सिंपल. सिंपल का ये है 12001 से लेकर के 12021। ठीक है, यहाँ पे मतलब थोड़ा गलती हो गया है, 1 कर देना। और ये जो है 12031 से Intermediate. 12057 इंटरमीडिएट या लेयर्ड क्लोजर। इंटरमीडिएट. और Layer closer. 131 वाला है वो कॉम्प्लेक्स है। Complex. ठीक है, कॉम्प्लेक्स. तो ये जो है वो सिंपल है और सिंगल लेयर है, मतलब कि एक ही लेयर में होगा। ठीक है। और ये जो है वो इंटरमीडिएट, मोर देन लेयर, मल्टी लेयर भी बोलते हैं। Multiple layer. ठीक है। ओके, अब गाइडलाइन हमने क्या देखी थी कि अगर कंटेमिनेटेड वुंड है और उसका क्लोजर सिंपल टेक्निक से हुआ है तो भी हमें कौन सी सीपीटी यूज करनी है? इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट वाली, है ना। तो गलती से ऊपर वाला यूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि कंटेमिनेटेड वुंड होगा और क्लोजर ये होगा। ठीक है। Simple closer. अदरवाइज फिर क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? कंटेमिनेटेड वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, लेकिन उसमें दिया था कि एक्सटेंसिव क्लीनिंग और ऐसा करके क्लोज किया गया, तो भी हमें समझ जाना है कि वो कौन सा होगा? इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट ही इंटरमीडिएट. होगा, है ना। जब उसने दिया है ना कि भाई एक्सटेंसिव क्लीन करना पड़ा और बाद में ये, तो समझ जाना है कि वो कंटेमिनेटेड वाला हो गया है किस्सा।
ठीक है, तो उसमें फिर हमें ये वाली मतलब कि इंटरमीडिएट लेयर क्लोजर वाली गाइडलाइन फॉलो करना है। और ये जो है वो कॉम्प्लेक्स है, उसके कीवर्ड कौन कौन से होते हैं? रिटेंशन सूचर, एक्सटेंसिव वुंड डेब्रिडमेंट, ठीक है, Scar अंडरमाइनिंग, division, कार रिवीजन, ये सब undermining. होगा ना, तो भी ये कॉम्प्लेक्स वाला होगा। उसके बाद में हमने गाइडलाइन में क्या देखा था कि कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, मतलब कि लेयर्ड क्लोजर ही है और लोकेशन अलग अलग है। ठीक है, मान लो एक है बैक और एक है एब्डोमेन। ठीक है, अब ये बैक और एब्डोमेन अगर देखा जाए ना तो वो ट्रंक में ही आता है। ठीक है, तो Yes. मतलब एक ही सीपीटी में मिल रहा है वो दोनों लोकेशन, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, ऐड Addition. करके है ना, एडिशन कर देंगे। Take single. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि लोकेशन अलग अलग मिल नहीं रहा है एक ही सीपीटी में, तो वहां पे फिर हम ऐड नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि लोकेशन मतलब एक ही सीपीटी में है ही नहीं, तो फिर तो घोड़ा और गधे क्या होगा, टोटल तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसी बात हो जाएगी, तो मतलब उस केस में ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर लोकेशन एक ही सीपीटी में मिल रहा है तो कर सकते हैं ऐड। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार हमको रिपोर्टिंग करना है, मतलब कि एक क्लोजर हमारा कॉम्प्लेक्स है, दूसरा इंटरमीडिएट है, तो रिपोर्ट कौन सा होगा? पहले कॉम्प्लेक्स वाला Complex. पहले, और बाद में Intermediate. इंटरमीडिएट, और साथ में Intermediate. 59 मॉडिफायर भी 59 जाएगा। modifier. ठीक है, तो ये हमारा हो गया है क्लोजर रिपेयर का हो गया है। उसके बाद में कौन सी थी प्रोसीजर? एटीटी, ATT. एडजेसेंट टिश्यू ATT ट्रांसफर, जिसकी रेंज हमारी सीबीटी ये है 140002 14302। 3 ठीक है, तो 3. एटीटी के कीवर्ड और कौन कौन से देखे थे हमने? जी Uh, प्लास्टी, वी प्लास्टी, वी वाई Plasty, प्लास्टी, Y है ना, plasty, रोम्बोइड फ्लैप, full आइलैंड stretch, फ्लैप। ठीक है, rearrange. और या रीअरेंजमेंट, एडवांसमेंट फ्लैप, ये सब मिल रहा था। ठीक है, तो ये सारी वही चीज़ है। उसके बाद में गाइडलाइन में हमने क्या देखा था कि अगर ट्रॉमा इन्वॉल्व है, ट्रॉमेटिक है, ठीक है, तो फिर ये फिर यूज हम नहीं नहीं करेंगे करेंगे। ये नहीं सीपीटी। होगा. नहीं करेंगे ठीक कोड. है, वो भूल जाएंगे। और दूसरा क्या था, यहाँ पे भी ऐसा था कि कोड ईच सेपरेटली कोड एटीटी करना है। सेपरेटली, है ना, तो एक एटीटी है तो एक हम्म. सीपीटी, दो है तो दो सीपीटी, तीन है तो तीन, इस तरह से करना है। ओके, और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? स्क्वायर सेंटीमीटर Square होगा। centimeter. ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा था इम्पोर्टेंट, एक्सीजन हमेशा बंडल्ड ही एक्सप्लेनरी होगा, में अलग से Bundled जाएगा होगा. नहीं। ठीक है, तो Yes. इसका नहीं. मतलब क्या हुआ, 1400 से लेकर के 14302 वाली कोई भी एक सीपीटी होगी, और साथ में अगर ये है 114 या 116, तो देखते ही हटा देंगे क्योंकि वो Incorrect. गलत हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा एटीटी का हो गया गाइडलाइन। उसके बाद में क्या था? स्किन रिप्लेसमेंट सर्जरी और Splat. ग्राफ्टिंग, Sir. है ना। तो उसमें हमने देखा था कि ग्राफ्ट के होते हैं ना, एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्ट, ये सब देखा था। तो ऑटोग्राफ्ट मतलब कि सेम पेशेंट, एलोग्राफ्ट Same. मतलब कि दूसरा बंदा, और जेनोग्राफ्ट मतलब कि कोई दूसरे एनिमल Animal में से. से ग्राफ्टिंग Animal. होगा। ठीक है, और गाइडलाइन में हमने देखा था कि ग्राफ्टिंग एसआरएस का जो क्वेश्चन होगा तो उसमें देखेंगे कि प्रिपरेशन है कि नहीं है ना, सर्जिकल प्रिपरेशन, वुंड प्रिपरेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर प्रिपरेशन मिल गया तो मतलब कि ये वाली सीपीटी का ध्यान में रखना है, 15002 से लेकर के 15005, है ना। 3. तो 15002 है वो क्या है? सर्जिकल Surgical प्रिपरेशन, preparation टीएएल and लोकेशन, टर्न TAL. आर्म्स एंड Learn लेग्स, and है ना। Lung. और ये भी कितने का? फर्स्ट 100 स्क्वायर सेंटीमीटर First का 100. ये जाएगा। ठीक है, और ऊपर एडिशनल है तो ये वन पीछे फाइव जीरो जीरो Add-on. थ्री यूज एडिशनल होगा। 3. और अगर लोकेशन टीएएल को छोड़ के है तो फिर वन Other फाइव जीरो than जीरो 1 फोर TL होगा। और ये भी 100 का होगा, फर्स्ट 100 स्क्वायर, और ऊपर है तो 15005 है। ठीक है, तो यहाँ तक ये ग्राफ्ट का हो, आई मीन प्रिपरेशन का हो गया। उसके बाद में देखा था कि ग्राफ्ट का गाइडलाइन क्या था? कोड ईच ग्राफ्ट एक सेपरेटली, ग्राफ्ट पहले. है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था कि एक ग्राफ्ट है तो एक सीपीटी, दो ग्राफ्ट है तो दो, तीन है तो इस तरह से। ठीक है, और ग्राफ्ट की सीपीटी में हमने देखा था कि 15271 में थोड़ा अलग है, और 15273 में भी थोड़ा सा अलग है। तो वो क्या अलग देखा था हमने? वन फाइव टू 200 सेवेंटी सेंटीमीटर है ना, ये क्या था? अप टू 99 के लिए यूज करना है ना। और ये जो है वो क्या है? अप टू और 100 ग्रेटर स्क्वायर देन सेंटीमीटर। और इसमें ऊपर वाले में क्या था? फर्स्ट 25 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा मिल रहा है ना, जबकि इसमें ऐसा नहीं मिल रहा है। देखो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये एकदम माइंड में ही रखना है ताकि वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
ठीक है, तो 15271 में क्या दिया है, एप्लीकेशन ऑफ स्किन सब्स्टिट्यूट ग्राफ्ट टू TAL और टोटल वुंड सरफेस एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये एक्चुअली 100 का नहीं होगा, 99 ही रखना है, क्योंकि 100 हमने देखा था ना 273 में आता है इक्वल टू 100। ठीक है, ये फर्स्ट 25 का है और ईच एडिशनल 25 है तो 15272 है। ठीक है, और आगे वाला 273 में देखेंगे तो क्या है, टोटल वुंड सरफेस एरिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ठीक है, तो इक्वल टू 100 है तो हम यही यूज करेंगे, ना कि 271। ठीक है, तो 273 जो है वो हमारा इसके लिए है, 100 के लिए है, और यहाँ पे कोई फर्स्ट 25 वाला नहीं है किस्सा। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद में हमने क्या देखा था कि दोनों है, मतलब कि ग्राफ्टिंग भी किया गया है और प्रिपरेशन भी है, तो फिर सीक्वेंस कैसे होगा। First Grafting पर grafting report होगा, Grafting then plus preparation with 59 modifier. ओके परफेक्ट, है ना। तो ये हमारा गाइडलाइन है और उसके हिसाब से ही हम क्वेश्चन में से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, अगर गाइडलाइन के हिसाब से कुछ गलत है तो आपको हेल्प मिल जाएगी, है ना, तो उस हिसाब से आंसर को रूल आउट कर देंगे और बाद में हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। उसके बाद में हमने देखा था पेडिकल फ्लैप, तो उसमें कीवर्ड का कंसेप्ट था, है ना, क्या था, फॉर्मेशन, डिले और ट्रांसफर। फॉर्मेशन की 4 CPT, डिले की 4 CPT और ट्रांसफर की 3 CPT, ऐसा था। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में लास्ट में हमने देखा था मोज सर्जरी, तो मोज सर्जरी की गाइडलाइन कोई बताएगा क्या था, बेसिक गाइडलाइन क्या थी मोज सर्जरी की, किसके लिए होता है मोज सर्जरी, स्किन कैंसर रिमूवल के लिए होता है ना। कैंसर डायग्नोसिस होगा वो हमेशा स्किन कैंसर वाला ही होगा, क्योंकि वो प्रोसीजर ही उसकी है। ठीक है, तो मतलब कि डायग्नोसिस अगर होगा तो C वाला ही होना चाहिए ICD कोड, है ना। और दूसरा क्या देखा था कि एक ही जो होगा ना सर्जन, वो 2 कैपेसिटी में काम करेगा। ठीक है, 2 सर्जन नहीं होगा अलग अलग, लेकिन एक ही बंदा 2 कैपेसिटी में काम करेगा एक साथ, मतलब कि एज ए सर्जन और एज ए पैथोलॉजिस्ट। ठीक है ना। तो हम ये वाले यूज करेंगे 17311 से 17315। अगर दो अलग अलग है तो फिर ये तो भूल ही जाना है, ये CPT यूज ही नहीं होगी, है ना, अलग अलग बंदे हैं। तो ये 17311 से 17315 का CPT का कोई स्कोप नहीं है फिर तो। ठीक है, तो ये गाइडलाइन हमने देखा था। उसके बाद में देखा था कि अगर सेम डे में बायोप्सी हुआ है, फ्रोजन सेक्शन हुआ है, तो बायोप्सी का जो होता है वन वन बायोप्सी वन जीरो टू CPT जीरो कोड नहीं फोर जीरो होगी, सिक्स तो वो हमें करना है कोड कोड नहीं फिफ्टी करेंगे। नाइन के साथ। नहीं, कोड नहीं करेंगे वो बात अलग थी, वो तो एकदम लास्ट में मैंने बताया था। ठीक है, मिक्स ओके। कर दिया है आपने, है ना। तो अभी मैंने क्या बताया कि मोज में अगर क्या था, एक बार फिर से गाइडलाइन बता देता हूँ, देखो। जो नहीं करना है ना वो बाद में मैंने एकदम लास्ट में बताया था ना, वो भी मैं करवाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये गाइडलाइन हमने पढ़ी थी ना, ये वाली बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इफ ए रिपेयर इज परफॉर्म्ड यूज सेपरेट रिपेयर, ये हो गया। और इफ ए बायोप्सी ऑफ ए सस्पेक्टेड स्किन कैंसर इज परफॉर्म्ड ऑन द सेम डे एज मोस्ट सर्जरी बिकॉज देयर वाज नो प्रायर पैथोलॉजी कंफर्मेशन, then report a diagnostic skin biopsy 111020406 and frozen section pathology 88331 विथ with 59। modifier 59 to distinguish। ठीक है, तो यहाँ तो करना है रिपोर्ट, ठीक है, एडिशनली 59 के साथ में करना है। ओके। यस सर। ओके, या ये क्या है 17311, नॉन फर्स्ट टीएल। स्टेज, लेकिन नॉन TAL लोकेशन, है ना, TAL को छोड़ के कोई और लोकेशन होगा तो फर्स्ट स्टेज के लिए ये है, और ये जो है वो ईच एडिशनल स्टेज। ठीक है, और लाइकवाइज TAL है लोकेशन, और फर्स्ट स्टेज के लिए ये जाएगा 313, ईच एडिशनल लोके स्टेज के लिए 314। अब 17315 है, वो क्या है, ब्लॉक के साथ में लेना देना ब्लॉक्स, है ना। तो additional block. टोटल सरप्लस ब्लॉक, मतलब कि हर एक स्टेज में 5 तक तो होता ही है। ठीक है, तो 5 तक तो वो स्टेज के अंदर ही पार्ट है, स्टेज का ही पार्ट है। लेकिन 5 के ऊपर गया ना तो उसको हम सेपरेट करते जाएंगे और फिर टोटल करेंगे, और वो जो टोटल होगा इसके साथ में जाएगा, 17315 के साथ में जाएगा, है ना। तो 5 के ऊपर जो जो भी है, जितने भी है वो सारे अलग हो जाएंगे और टोटल मिला के, कुल मिला के 17315 के साथ में लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मोस्ट सर्जरी की गाइडलाइन। ओके, अब हमने देखा था कि बायोप्सी का कैसा था,
कि अगर कोई प्रोसीजर हो रही है एक लोकेशन पे और बायोप्सी भी उसी लोकेशन पे हुई है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि बायोप्सी सेपरेटली नहीं होगी रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो प्रोसीजर के अंदर ही हो जाएगा, है ना। लेकिन ये मोस्ट सर्जरी के किस्से में ऐसा नहीं है फिर। ठीक है, तो मोस्ट जी सर्जरी में ओके। मैंने अभी आपको बताया ना, तो मोस्ट सर्जरी का गाइडलाइन अलग है और वो गाइडलाइन अलग है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि Okay. प्रोसीजर एक लोकेशन पे हो रही है, बायोप्सी जो हो रही है वो दूसरे लोकेशन पे है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोसीजर दोनों बिल पहले करना रिपोर्ट है। करना दोनों है को। और बायोप्सी भी बाद में करना है, बाद में जाएगा बायोप्सी का सीपीटी। ठीक है, तो ये हमारा गाइडलाइन हो गया, इंटेग्यूमेंट्री का पूरा रिवीजन हमने कर लिया है। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे? कल तो खैर कार्डियोवास्कुलर करेंगे, लेकिन रिवीजन भी डेली बेस पे स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, तो कल Yes, sir. मस्क्यूलो का कोई भी एक बंदा कर लेगा और बताएगा। ठीक है, मस्क्यूलो में थोड़ा सा है, मतलब कि कंसिडरेबल अमाउंट है रिवीजन के लिए। ठीक है, रेस्पिरेटरी में बहुत कम है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी में तो बहुत ही कम है। ओके, तो यही हमारा प्लान है। कार्डियोवास्कुलर के लिए कम से कम 2 दिन लगेंगे।